Hello students, I hope all of you are fine. And today again I welcome you back in our science class. And this is the 7th video on chapter number 6, life processes. I know this chapter is very lengthy, but all the topics are really very important. So that is why we need to understand each and every topic very carefully. So topic of today's video is transportation in plants. As in the previous video we have discussed about the transportation in human beings, where we discussed about the human heart, about the blood vessels and the blood. So in the case of plant, now I'll be discussing that how the transportation of material takes place. So first of all, have a look at this topic, that is vascular bundle. So vascular bundle are the structures inside the plant which are responsible for transportation of material from one point to another point. तो जो vascular bundle है, मेन यही function perform करते हैं for the transportation of material inside the plant body. So these are the conducting tissues of the plant. Conducting tissue means which are responsible for transportation. जो transportation के लिए responsible है, because conduction means movement from one place to another place. So it is made up of, if we talk about vascular bundle. Vascular bundle actually होता क्या है? Vascular bundle is made up of two components. One is xylem, second is phloem. ये दोनों कंपोनेंट इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वैस्कुलर बंडल. ये जाइलम और फ्लोएम दोनों से मिलके जो वैस्कुलर बंडल है वो बनता है. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द प्लांट बॉडी एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड इनसाइड द प्लांट बॉडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जाइलम, लेटर ऑन अबाउट द फ्लोएम. तो सबसे पहले हम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट xylem is responsible for the transportation of water inside the plant body. So just look at the diagram. Just suppose that this is a tree और हमें ये पता है कि जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट्स. और आगे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज xylem. Just look at the diagram carefully. This is xylem. These are the roots and these are the leaves and branches of a tree or a plant. So inside the plant body, if we talk about the transportation of water, mainly दो mechanism responsible है, दो forces responsible है, that we need to understand one by one. First है root pressure. तो दो थ्योरीज एक्सप्लेन करती है कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होती है. फर्स्ट इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज थ्योरीज वन बाय वन. फर्स्ट रूट प्रेशर, देन ट्रांसपिरेशन पुल. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम किसी प्लांट को पानी डालते हैं, so we add the water to the roots of the plant. So this we know that जो plant है water को absorb करता है through its roots. So we will start from the roots, that how the roots absorb the water. Because first step यही होता है कि plant body में water add होना start होता है just from these structures known as the roots. So first of all we will understand that how the roots absorb water inside the plant body. Just suppose that this is soil. तो ऑब्वियसली जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो जो सॉइल में वाटर है वो रूट्स के अंदर कैसे जाता है? सो व्हाट द रूट्स दे डू, दे विल एब्जॉर्ब द आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल. रूट्स ने क्या करना है कि जो उनके आसपास आयंस है, आयंस को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेना. एक्टिवली मीन्स by using energy. Now if the gradient is there, if the difference is there,
इफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस इज देयर, एक साइड पे कंसंट्रेशन हाई है, एक साइड पे लो है, वो अपने आप ही मूव कर सकता है। बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब हमने अपनी मर्जी से कोई चीज ऑब्टेन करनी है, ग्रेडियंट है या नहीं है, अगर ग्रेडियंट नहीं है तो वी नीड टू ऐड एनर्जी टू इट। सो बाय यूजिंग द एनर्जी द आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो आयंस, आई थिंक बाय नाउ यू आर इन क्लास 10th, आप सभी को पता है कि आयंस क्या होते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट आर आयंस। आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। Two kind of ions are there. I think you remember. One are cation, second are anion. Cation जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, anion जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयंस को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं बाय यूजिंग एनर्जी। नाउ जो आयन है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस रूट्स के अंदर चलेगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, लिविंग सिस्टम में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि लिविंग सिस्टम में वाटर और आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, मेंटेन रहती है। मींस अगर आयन बढ़ेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर भी बढ़ता है। सो व्हेन द आयन हैज एंटर्ड इनसाइड द रूट, आयन रूट के अंदर चले गए तो उससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स दे आर अ पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो सेल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, जब बाहर से आयन अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली टू बैलेंस देम, उसको बैलेंस करने के लिए बाय ऑस्मो रेगुलेशन वाटर ऑटोमेटिकली रूट्स के अंदर चला जाएगा। सो द वाटर विल ऑटोमेटिकली मूव इनसाइड द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड दिस इज आल्सो नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा कि जो वाटर है इन द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द रूट्स, तो वो वाटर रूट के अंदर चला जाएगा। सो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि हाउ द वाटर एंटर इनसाइड द रूट्स। सो आफ्टर द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द रूट्स व्हाट हैपन कि जो पानी है वो रूट के अंदर ऐड होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है और जो वाटर है ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। दिस इज नोन एज रूट प्रेशर। सो आई थिंक रूट प्रेशर इज क्लियर। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन so that you don't have any kind of confusion कि when the ions are absorbed by the roots actively due to osmoregulation, due to osmosis, जो रूट के सराउंडिंग में सॉइल है उसमें जो वाटर है, वाटर ऑटोमेटिकली रूट्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है और इस वाटर की एंट्री की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। एंड जस्ट रिमेंबर दैट द रूट प्रेशर इज सफिशिएंट to supply the water to each and every part of the cell, each and every part of the plant body, sorry, if the plant body is small in size। अगर plant बहुत छोटा है तो root pressure alone is sufficient to supply water to it। मीन अगर plant का size बहुत छोटा है तो root pressure, सिर्फ root pressure ही काफी है water की supply के लिए। But if the size of the plant is huge, it is a tree, large size plant है, उसमें रूट प्रेशर अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई द वाटर टू सच अ हाइट। इतनी हाइट तक वाटर को सप्लाई करने के लिए रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है, मींस सम एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा भी और फोर्स रिक्वायर्ड है एंड दैट फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल। सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसपिरेशन पुल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट प्रेशर विल बी देयर। रूट प्रेशर से थोड़ा बहुत पानी जो है वो जाइलम के थ्रू ऊपर मूव करता है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट इन द केस ऑफ लार्ज ट्रीज और लार्जर प्लांट, लार्ज साइज प्लांट। तो उनमें क्या होता है, एक मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन। I think most of you remember about transpiration because you might have studied this in class 9th। क्लास 9th में अपने ट्रांसपिरेशन टॉपिक पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन एक्चुअली क्या होता है कि लीज में होते हैं स्टोमेटा और स्टोमेटा में से वाटर वेपर्स कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं। तो स्टोमेटा में से जब वाटर वेपर्स कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं बाहर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है कि लीज में क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस जो है जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम सिरिंज को पीछे की तरफ पुल करते हैं
तो एक एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन पुल लगती है और जो मेडिसिन है वो उसके अंदर चली जाती है। जब भी हम सिरिंज को फिल करते हैं, कोई इंजेक्शन लगाना होता है, सिरिंज को फिल करते हैं, उसको हम थोड़ा पुल करते हैं पीछे की तरफ, तो एक एम्प्टी स्पेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है उसके अंदर चली जाती है। इन द सेम वे व्हेन द ट्रांसपिरेशन अकर्स, व्हाट हैपेंस, इस पॉइंट से वाटर वेपर्स मींस वाटर लूज हो जाता है, एक एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाती है, ड्यू टू विच अ सक्शन पुल इज जनरेटेड, ड्यू टू विच द एंटायर कॉलम ऑफ वाटर, जो पूरे का पूरा वाटर का कॉलम है वो ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। दिस इज हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू सच अ हाइट। इतनी हाइट तक वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होती है। सो आई थिंक बोथ द थ्योरीज आर क्लियर दैट हाउ डू द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द प्लांट बॉडी। I'll explain right from the beginning. First of all, the ions are absorbed by the roots. जब रूट्स ने आयंस को absorb कर लिए तो एक वाटर और आयन का जो इम्बैलेंस है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल का वाटर रूट्स में चला जाएगा और इस वाटर के एंट्री की वजह से वाटर आगे जाएगा जाइलम में। जब वाटर एंटर होता रहेगा उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ चला जाएगा, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। Second mechanism that is responsible for the transportation of water is transpiration pull, because in the case of large size plants, root pressure alone cannot supply the water. तो उसके लिए transpiration pull required है। I told you what is transpiration. जो leaves है, leaves के स्टोमेटा में से water vapors release होते रहते हैं, that is known as transpiration. And due to transpiration, एक empty space generate हो जाती है, जिसकी वजह से एक suction pull लगती है। Suction pull लगने की वजह से क्या होता है, पूरे का पूरा वाटर का कॉलम ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है दैट टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट बॉडी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रांसपिरेशन पुल और द सक्शन पुल लाइक यू ड्रिंक अ जूस और अ कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ की हेल्प से जब हम जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो कैसे पीते हैं, यूजली जनरेट अ सक्शन पुल। एक सक्शन पुल जनरेट करता है तो पानी ऊपर की तरफ या कोल्ड ड्रिंक ऊपर की तरफ या जूस ऊपर की तरफ मूव करता है। इन द सेम वे इनसाइड द प्लांट बॉडी द ट्रांसपिरेशन पुल वर्क्स। द ट्रांसपिरेशन इज देयर, द सक्शन प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू व्हिच द एंटायर कॉलम ऑफ वाटर पूरे का पूरा पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। So this is how the water is transported inside the plant body. So I think the entire process is clear. Okay, so still if you have any kind of doubt, just write in the comment section. I will try to clear all your doubts. So thank you so much.